Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to lecture number 19 of week number 6. I hope so कि आपको अब तक के lectures जो हैं वो समझ आए होंगे. If you have any questions regarding to previous lectures, so you can ask from me anytime. आज के जो lecture है उसके अंदर हम चल रहे थे इसी week में जो हम लोगों ने start किया, that is हम लोगों ने logic gates को discuss किया, in which we discuss about the different logic gates. उस केस के अंदर हम लोगों ने एक जगह पर ये बताया कि NAND and NOR gates are called universal gates. So today's the topic of our discussion is the universal gates. Why we call the NAND gates and NOR gate as the universal gate, and then we will discuss the universal properties of the NAND gate and NOR gate, in which we implement the other gates like NOT and NOR gate using the NAND gate and NOR gate. So ये आज का चैप्टर है हमारा. उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से मैं समझा सकूँगा. ओके, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ. दैट इज द यूनिवर्सल गेट. यूनिवर्सल गेट इज अ गेट विच कैन इम्प्लीमेंट एनी बूलियन फंक्शन विदाउट नीड टू यूज एनी अदर गेट. यानी you can perform with the help of the universal gate the other function of the other gates as well. So that's why the such type of gates are called the universal gates. So the NAND and NOR gates are called the universal gates because with the help of these gates you can perform the function of the other gates like NOT gate, OR gate and AND gate functions as well as their own function, and वो तो ये करेगी ही करेंगे. So ये that's why these gates are called the universal gates. ये आपको question पता होना चाहिए. In practice this is advantageous since NAND and NOR gates are economical and easier to fabricate and are the basic gates used in all IC's digital logic families. Clear? In fact we use NAND gates. AND gate को भी हम typically implement करते हैं as a NAND gate when putting inverter in front of the AND gate. So हम उससे NAND gate का, इसी तरह OR gate के आगे हम लोग NOT gate को लगा लें तो हम उससे NOT gate का function भी लेते हैं. Universal properties of the NAND gate. To prove that any Boolean function can be implemented using on the NAND gates, we will show that the AND, OR and NOT operations can be performed using only these gates. ये बता रहे हैं आपको ये है कि आप अगर प्रूफ करना चाहें तो प्रूव दैट a Boolean function can be implemented using the on the NAND gates, as we will show the AND, OR and NOT operation can be performed using only these gates. So हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने ये परफॉर्म कर शो करना है कि यूनिवर्सल गेट NAND गेट तभी कराएगा जब वो ये तीन फंक्शन भी अपने फंक्शन के अलावा ये तीन गेट्स के फंक्शन भी परफॉर्म इसके थ्रू हम कर सकेंगे. सो फर्स्ट थिंग इज टू इम्प्लीमेंटिंग एन इन्वर्टर यूजिंग ऑन दी NAND गेट. ठीक है, तो NAND गेट के यूज करते हुए हम इन्वर्टर का फंक्शन करते हैं. यहाँ पर आगे चलने से पहले वन थिंग जो आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है, इस लेक्चर को गौर से देखें, वीडियो को बार बार देखें, बिकॉज आपकी असाइनमेंट को क्वेश्चन में इसी वीक्स में से बता रहा हूँ. मैं आपको सर्किट्स बना रहा हूँ, आपने टेबल के थ्रू इसको प्रूफ करना होगा. ये जो मैंने सर्किट के थ्रू प्रूफ किया है कि दिस सर्किट इज इक्वल टू द सर्किट ऑफ द अदर गेट, सो आपने इसको टेबल के थ्रू करना है. दैट्स व्हाई वी डिस्कस द ट्रूथ टेबल्स इन द प्रीवियस लेक्चर्स. क्लियर? सो आप लोगों ने अपने इस लेक्चर को बहुत गौर से करना है, और कोई क्वेश्चन हो तो अभी पूछेंगे, लेकिन असाइनमेंट के बाद आपने इससे रिलेटेड बात नहीं पूछनी, देन आपने इसको प्रूफ करना है. देख लें. The figure shows the NAND gate can be used as an inverter. All the inputs of the NAND gates are connected to give us an A complement या A prime आप कह लें. हमने क्या किया, हमारे पास N NOT गेट पता है कैसा होता है, आप एक डालते हैं वो A complement निकालते हैं. तो हम लोगों ने क्या किया, हमने NAND गेट को कनेक्ट कर दी उसकी दोनों पिन्स को into वन, और हमने जब उसको आउट दिया तो हमारे पास आ गया. आपको पता होना चाहिए कि NAND गेट की इक्वेशन क्या है, A डॉट A और A डॉट B होल कॉम्प्लीमेंट होती है अगर दो डिफरेंट इनपुट. तो अगर इधर आपके पास एक ही इनपुट है दो, तो आपके पास A डॉट A होल कॉम्प्लीमेंट आ गया जो कि इक्वल टू आ गया A कॉम्प्लीमेंट के. ठीक है, ये कैसे आया, इधर मैं आपके पास पेन को यूज करता हूँ. ये चीज आपने प्रूफ करके बतानी होगी. कैसे बतानी होगी? फॉर एग्जांपल आपके पास A है, ठीक है, तो A से जो है, A से आपके पास क्या है, दो ही इनपुट हैं 0 एंड 1. ठीक हो गया. अब आप लोगों ने A डॉट A निकालना है. ठीक है, A डॉट A निकालना है. A डॉट A से आपके पास क्या आया, A डॉट A से क्या आएगा, 0 मल्टीप्लाई बाई 0 से 0 आएगा, और 1 मल्टीप्लाई 1 से 1 ही आएगा.
ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये भी करना होगा कि ए, मैं रफ वर्ड में दे रहा हूँ आपको ताकि आप इसको समझ लें। ए डॉट ए ब्रैकेट बंद करके कॉम्प्लीमेंट, यानी ये चीज कॉम्प्लीमेंट से क्या आएगा, जब ए डॉट ए से ही है तो इसके ऊपर जब कॉम्प्लीमेंट से गुजरेगा तो क्या आएगा, 0 से 1 एंड 0। तो आपके पास ए और ए कॉम्प्लीमेंट, इसका टेबल आप देख लेंगे, आप पिछले लेक्चर नोट से देख लेंगे, लेकिन नीट कर लेंगे कि आप जब 0 डालते थे तो और 1, तो वो 1 और 0 आंसर दे। तो देखिए इधर भी आंसर आपके पास क्या आया, इधर से जब आपने डाला और आपके पास ए डाले गोल कॉम्प्लीमेंट का आंसर 1 और 0 है, जिसका मतलब ये इक्वल टू क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है। बात समझ में आ रही है। तो आप लोगों ने इस तरीके से इसको प्रूफ करना होगा टेबल में इन योर असाइनमेंट वर्क। तो वो मैं आने वाले क्लास में आपको दूंगा 28 मई को इंशाल्लाह। सो यू मस्ट बी प्रिपेयर, उसके लिए होना चाहिए। अब तक आप लोगों ने काफ़ी जो है इनपुट जो है लेक्चर्स के ऊपर कम दिया है, इतना ज़्यादा आप लोग इसको रमज़ान की वजह से नहीं देख पा रहे, लेकिन देखना लाजमी है। क्वेश्चंस आपके सारे इस वीक तक हो गए, 7 वीक। नेक्स्ट वीक में हम वीक नंबर 8 शुरू कर रहे हैं, जो हम लोग वीक नंबर 7 जो है कंप्लीट कर देंगे आज इंशाल्लाह। ओके, नाउ अब हम लोग यूनिवर्सल गेट प्रॉपर्टीज पढ़े नैंड गेट की, और वी आर इम्प्लीमेंटिंग द एंड गेट यूजिंग द नैंड गेट। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एंड गेट की इक्वेशन क्या है, ए डॉट बी। तो आपने ऐसा सर्किट बनाना है नैंड गेट से जो ए डॉट बी के इक्विवेलेंट का आंसर देगा। तो ये टेबल आपके पास नोट्स में अवेलेबल है ऑलरेडी। इधर से आप क्या करेंगे, ए और बी को जब आप लोगों ने लिया तो ए और बी से आपके पास जब निकलता है नैंड गेट में इंटर करते हैं तो आपका आउटपुट भी आता है ए डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब उसके आगे आपने इन्वर्टर लगा देंगे नैंड गेट से बनाए वही। जब लगे तो जब ए डॉट बी को इन्वर्टर से गए तो इन्वर्टर क्या करता है, जो वैल्यू इसकी आई होगी वो उसको अपोजिट कर लेगा, तो वो जो वैल्यू आउटपुट देगा वो आपके पास ये आ जाएगी। इधर से आपके पास देखिए नैंड गेट क्या होता है, ये था जब इसके आगे हमने इन्वर्टर लगा दिया तो वो ए डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंट, जब दोबारा इन्वर्टर आया तो वो कॉम्प्लीमेंट कट गया आपस में और आपके पास ए डॉट बी आ गया। तो इसको भी आपने अगर शो करना होगा तो इसी तरीके से करना होगा कि अब आपने टेबल में ए और बी दो वैल्यूज बनाएंगे। अब ये दो वैल्यू का टेबल बनेगा जिसमें आप 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 ये वैल्यूज डालेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो है आपके पास इससे पहले आप ए डॉट बी बना देंगे, ए डॉट बी बना देंगे, उसकी वैल्यूज लगा लेंगे। उसके बाद आप लगा देंगे ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, ये वाला इधर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद अब जो इस इन्वर्टर से गुजर रहा है, ठीक है, तो आप इन्वर्टर से गुजरने के लिए उसके बाद ए डॉट बी और होल कॉम्प्लीमेंट से जो आंसर आएगा वो ये लिखेंगे और फिर उसको इस टेबल के आंसर से मैच करेंगे। तो आपके पास इसका जो आउटपुट होगा और जो इस ए डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंट का जो आउटपुट वो एक जैसा होगा। तो उसको बताएगा कि हैंस ये प्रूफ हो गया कि इसका आउटपुट और उनका आउटपुट जो इस सर्किट का आउटपुट है, इस सर्किट का जो आउटपुट है आपके पास और इस सर्किट का जो आउटपुट है वो दोनों सेम आए। तो ये आपको मैं रफ आइडिया दे रहा हूँ, आप लोग इसके ऊपर वर्किंग करें। कोई इशू कोई मसला हो तो आप मुझसे इन 2 दिनों के अंदर पूछेंगे। ठीक है। देन असाइनमेंट में इसको नीट आप लोगों ने करना होगा। क्लियर। नाउ वी आर इम्प्लीमेंटिंग दी आर गेट यूजिंग दी नैंड गेट। सर्किट मैं बना रहा हूँ, सर्किट आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पर आपने टेबल के थ्रू प्रूफ करना होगा। ओके, now we are implementing OR gate using the NAND gate। आपने दो NAND गेट्स को इन्वर्टर बनाया पहले, उनको A और B लेके इधर से आया तो आपके पास देखिए A डाला तो A कॉम्प्लीमेंट बन गया, B डाला तो B कॉम्प्लीमेंट बन गया। ये वैल्यूज आ गई आपके पास। देन अब आपने इसको इन्वर्टर में ऐड किया, NAND गेट में ऐड किया। NAND गेट से जब जाए तो NAND गेट की इक्वेशन इफ यू रिमेंबर है आपके पास A डॉट B होल कॉम्प्लीमेंट। तो इस दफा तो ए डॉट बी की जगह ए कॉम्प्लीमेंट बी है तो ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट आया इज इक्वल टू ए प्लस बी, जो कि आर गेट की इक्वेशन के इक्वल आंसर आएगा। इसके लिए भी आपने टेबल बना लेना है। टेबल में आपने बनाना है कि काम किस तरह से करना है, मैंने आपको बताया कि आप पहले ए और बी ले लेंगे, फिर आप ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट बना देंगे। ठीक है। इसमें अब आप लोगों ने ज़रा सा और लेंथी काम करना है। काम क्या करना है, आपने पहले ए और बी ट्रुथ टेबल की तरह ले लेंगे 0 0 0 1 1 0 1। उसके बाद आप लोगों ने ए और बी का जो है सेपरेट कॉम्प्लीमेंट बनाना है। जितनी वैल्यू ए के लिए जितनी वैल्यू बी के लिए उनके आप कॉम्प्लीमेंट बना दें। उसके बाद आप जो है ए
कॉम्प्लीमेंट डॉट बी जो है उसका आंसर निकाल लें। इससे क्या आएगा, डॉट के ऑपरेशन से इसका आंसर निकालें और फिर आपने इस आंसर का ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। ठीक है, ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट ले लेना है, जिससे आपके पास जो आंसर आएगा वो जो आपके एंड गेट आर गेट का ऑपरेशन का जो होगा वो आपके पास आंसर आएगा। तो थर्ड द NAND गेट इज द यूनिवर्सल गेट सिंस इट कैन इम्प्लीमेंट द and or and not गेट। सो आपको पता होना चाहिए व्हाई वी कॉल द NAND गेट एज द यूनिवर्सल गेट। सो आपके पास आंसर इसी नोट्स के अंदर अवेलेबल है। क्लियर? तो ये जो मैंने रफली आपके लिए सारा डिज़ाइन किया है, आपको मालूम होना चाहिए कि ये सारे का सारा आप लोगों ने करना है अपने आने वाली असाइनमेंट के लिए। रेडियो ने लेक्चर को बार बार देखें, पूरा देखें। अक्सर बच्चे लेक्चर्स में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो ये अब वही बच्चे असाइनमेंट कर सकेंगे जो लेक्चर को देखेंगे। क्लियर है? चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज ऑफ द NOR गेट। ओके, नाउ हमारे पास जो है यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज ऑफ NOR गेट है। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ NOR गेट है टू प्रूव दैट एनी बूलियन फंक्शन कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग ओनली द NOR गेट। वी विल शो दैट the and or and not operation can be performed using only these gates। यानी NOR गेट को यूज करते हुए और NAND गेट को यूज करते हुए हम शो कर सकते हैं कि with the help of this gate we can also perform the function of and or and not gate। so आपने पिछले टॉपिक में NAND गेट के थ्रू देखा। नाउ वी आर implementing an inverter using the NOR गेट। अगेन आपको पता होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए फ्रॉम लास्ट 2 लेक्चर से आपको एंड गेट, और गेट और नॉट गेट की जो है टेबल और इक्वेशंस याद होनी चाहिए। इसी तरह NAND और NOR गेट पे असल में एक्चुअली समझना ये है कि आप कैसे इसको इक्वेशन है। अब इन्वर्टर में आपको पता है ए को डालते हैं तो वो ए कॉम्प्लीमेंट बन जाता है, मतलब आप ज़ीरो डालते हैं। ठीक है, आप अपने पास जो है ज़ीरो डालते हैं तो ज़ीरो जो है वो 1 में कन्वर्ट हो जाता है, 1 डालते हैं तो वो 0 में कन्वर्ट। अब आपने इस NOR गेट से इस NOR गेट से ऐसा एक गेट बनाए का फंक्शन बनाना है जो कि आपको ऐसा फंक्शन करके दे। तो आपको तो पता है NOR गेट के अंदर 2 इनपुट्स होते हैं जैसा कि NAND में। तो आपने इन दोनों को मिला के एक बना दिया। ये एक जब इधर से आएगा तो a प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि NOR गेट की इक्वेशन है a प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट। अगर दो डिफरेंट इनपुट्स, अगर इधर आपने दोनों इनपुट को मिला लिया तो आपके पास क्या बन गया, a प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट। इसका जो आंसर है वो ऐसा ही आंसर होना चाहिए। तो कैसे हो जाएगा, आपने a ले लिया, a के बाद जो है आप लोगों ने a के अंदर 2 ही इनपुट्स होते हैं, ठीक है, 0 होते हैं या 1। जब भी एक वैल्यू होगी तो 2 इनपुट्स हो गए। उसके बाद आप इसका a प्लस बी बना दें, a प्लस बी आप a प्लस ए बना दें। तो a प्लस ए से आपके पास 0 और 1 आ जाएगा। अब इस a प्लस ए का आपने ये बना देना है होल कॉम्प्लीमेंट। इस होल कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आएगा वो और ये इस इन्वर्टर वाले टेबल का आंसर सेम होगा। तो दैट्स व्हाई आप उसको दैट्स हाउ यू विल शो दैट दिस द आउटपुट ऑफ द NOR गेट और आउटपुट ऑफ द इन्वर्टर बोथ आर सेम। तो टेबल के थ्रू आप आपने प्रूफ करना होगा। सर्किट के थ्रू मैंने प्रूफ कर लिया, टेबल के थ्रू आपने असाइनमेंट में प्रूफ करना होगा। बात समझ रहे हैं? ये सारा चीज आप लोगों ने करनी है। यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज ऑफ द NOR गेट को करते हुए हम कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ OR गेट या इम्प्लीमेंटिंग OR गेट यूजिंग द NOR गेट। NOR गेट को यूज करने के लिए हम क्या करना है, OR गेट कैन बी रिप्लेस्ड बाय NOR गेट एज शोन इन द फिगर। The OR is replaced by NOR gate with its output complemented by the NOR gate inverter। So हम लोगों के पास OR गेट की इक्वेशन हमें मालूम है कि OR गेट इज इक्वल टू 2 डिफरेंट इनपुट्स हैं तो उससे a प्लस बी आती है। हमने ये इक्वेशन के इक्विवेलेंट आउटपुट इससे प्रोड्यूस करना है। अगेन हमने भी इसको भी ले लिया सिंपल NOR गेट को a प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट है। सिंपली आपको पता है इस कॉम्प्लीमेंट को अगर खत्म करना है तो हम इसको दोबारा इन्वर्टर से गुजारेंगे तो ये a प्लस बी बन जाएगा। तो आपने क्या किया, आपने इसको a प्लस बी को जो है आगे उसके इन्वर्टर लगाया, लेकिन इन्वर्टर कौन सा लगाना है, आम इन्वर्टर नहीं लगाना है, NOR गेट से ही बना हुआ इन्वर्टर लगाया और आपने उसको कन्वर्ट किया और जो इक्वेशन का आंसर आएगा वो आपके पास इक्वल टू दिस a प्लस बी का। इसके लिए आपने फिर क्या करना है, आपने सबसे पहले जो है a और b को ले लेना है। a और b को आप लोगों ने ले लेना है, ठीक है, और फिर आपने इससे क्या करना है, a प्लस बी ये बना देना है। क्लियर? अब इस a प्लस बी के बाद यहाँ पर ये वाला आ जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ये लिखना है इधर ब्रैकेट मुश्किल है। a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट लेना है तो ये बन जाएगा। इसको जब इन्वर्टर से आप गुजार रहे हैं, ठीक है, डबल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा।
इसको जब इन्वर्टर से गुजारा तो जो इसका आउटपुट आएगा, इसका ये सारे का इनपुट वो इसके इक्वल आना चाहिए। तो ये चीज आप लोगों ने करनी है, इसको समझना है आपने, बड़े ही गौर से और बड़े ही एहतियात से काम करना है। क्लियर? सो ये मेन काम है जो आप लोगों ने परफॉर्म करना है। टेबल को बड़े आराम से बनाना है, आपको मैं बता रहा हूँ। लेक्चर को स्टडी कर लें, समझ ना आए मुझसे आप लोग पूछ लें। क्लियर हो गया? मैंने सर्किट के थ्रू कर लिया, बिकॉज सर्किट डिजाइन करना आपके लिए डिफिकल्ट होना। टेबल आप कर सकते हैं, थोड़ा सा आप लोगों ने वर्किंग करनी होगी। इसीलिए लास्ट वीक में लास्ट टू लेक्चर्स में आपको मैं यही बता रहा था कि हम ये हमारी बेस है आने वाले चैप्टर्स के लिए। तो ये जो ट्रुथ टेबल और इक्वेशंस के ऊपर हम कंसंट्रेशन कर रहे हैं और हमें इसके लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन और लॉजिकल निगेशन और लॉजिकल एडिशन के रूल्स पढ़ रहे हैं, ये आगे हम यूज़ करेंगे मुख्तलिफ जगहों पर। तो ये स्टार्ट है, आने वाले चैप्टर में सारा इसी किस्म के थ्रू आपने प्रूफ करना है। सो यू मस्ट नो हाउ टू यूज दिस लॉजिकल ऑपरेशंस, ठीक है, इन अ टेबल। सो आपने इसको एक ट्राई करनी है ज़रूर। इम्प्लीमेंट करना है आप लोगों ने अगेन एंड गेट को यूजिंग दी नॉर गेट। तो नॉर गेट के लिए हमने क्या किया कि एंड गेट कैन बी रिप्लेस बाय नॉर गेट एज शोन इन द फिगर। एंड गेट को हमने रिप्लेस किया बाय नॉर गेट विद ऑल द इनपुट्स कम्प्लीमेंटेड बाय द नॉर गेट के थ्रू। हमने क्या किया, हम लोगों ने एक इनपुट लिया ए, उसका हमने ए कॉम्प्लीमेंट बनाया, फिर बी लिया और उसका हमने बी कॉम्प्लीमेंट बनाया। दो इनपुट ले लिए, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, उसको नॉर गेट से गुजारा। दो इन्वर्टर हमने बनाए हैं पहले नॉर गेट से, उसके बाद हमने इसको नॉर गेट से, तो हमारे पास देखें दो इनपुट, हमारे पास नॉर गेट की इक्वेशन है ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो इस दफ़ा इनपुट इन्वर्टेड ऑलरेडी हमने इन्वर्टर से गुजारा हुआ है, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको यहाँ से ए तो बी आ गया, तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट होल आ गया। इसका आंसर जो है वो इक्वल टू ए डॉट बी की इक्वल आएगा। आपको पता हो कि एंड गेट की इक्वेशन है ए डॉट बी, ठीक है। ए डॉट बी से जो आंसर आएगा वो इससे जो आंसर आएगा, इससे जो आंसर आएगा वो ए डॉट बी से जो आंसर आता है वो इसके इक्वल आएगा। तो तभी हम कह सकते हैं कि ये जो इसका आउटपुट है वो एंड गेट जैसा है, और इसीलिए ये वाला जो नॉर गेट है हम यूज कर रहे हैं, उससे जो आउटपुट हमने हासिल करके हमने अगर एंड गेट के आउटपुट जैसा प्रोड्यूस करें, तो इसका मतलब ये है कि हम नॉर गेट को यूज करते हुए एंड गेट का काम परफॉर्म कर सकते हैं। So that's why हम ये कहते हैं कि NOR gate is a universal gate since it can implement the AND OR and NOT operation या functions। तो ये आपके पास मेन बात है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, अपने गेट्स को इसको बड़े एहतियात से बनाना है। ये मैं अगली स्लाइड में आपको बताता हूँ कि किस तरीके से करना है। सबसे पहले जो है आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने देखें ए ले लेना है, ए, ठीक है। ये तो इस पे यूज करना मुश्किल हो जाता है, ए ले लेना है, ठीक है। टेबल यूं बनाना है, उसके बाद जो है ए का कॉम्प्लीमेंट ले लेना है, ए का कॉम्प्लीमेंट ले लेना है, और फिर बी का कॉम्प्लीमेंट भी ले लेना है, ठीक है। तो अगर आपके पास वैल्यू देखें 0 0 0 1 1 0 1 1, तो ए की वैल्यू देखें 0 0 1 1 है, तो आपकी वैल्यू होगी 1, इन्वर्टर से गुजर है 1, ठीक है, 0 0। बी की वैल्यू 0 1 है, तो आप 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0, ठीक हो गया। यू वैल्यू हो जाएगी। अब आपने इसके बाद क्या कर लेना है, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। मेरी वॉइस पे तवज्जो दें ताकि अगर ये आपको समझ नहीं भी आ रहा होगा तो वॉइस पे में दें। ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, इनको ऐड कर लेना है, तो आपके पास आंसर आएगा 1 प्लस 1 से 1, 1 प्लस 0 से 1, 0 प्लस 1 से 1, एंड दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां तक करने के बाद अब आप पीछे आ जाए, देख लें। अब आपके पास जो है ए कॉम्प्लीमेंट ये आया, इससे जो आंसर आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। अब देखें, अभी तक आपने यहां तक पहुंचे, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट को आपने ऐड कर लिया, ऐड कर लिया। अब ये वाला पोर्शन रह गया, ये वाला, ठीक है। इसको आपने इसको अब अगले इसमें क्या करना है, अब आपने अगेन क्या करना है, ए प्लस बी, और ये कॉम्प्लीमेंट ही है, ठीक है। इसकी ब्रैकेट को आपने करना है, सुनते रहे आवाज पे, आपको समझ आएगी, और होल कॉम्प्लीमेंट ये करके अब देखें इसका कॉम्प्लीमेंट किया तो ये 0 ये 0 ये 0
और ये 1 बन गया। ठीक है, ये 1 आ गया। नाउ इस टेबल को और आप जो है बैक पे आ जाए, इस टेबल को ए बी को मिला लें तो ये दो टेबल सेम हो गए। तो हेंस प्रूफ हो जाएगा कि आपने जो काम किया है, आपने जो नॉर गेट से आउटपुट लिया है वो इक्वल टू द आउटपुट ऑफ द एंड गेट है। सो ये चीज़ आपने प्रूफ करनी है। इस तरीके से आपने नोट्स में अपने बनाने होंगे इस दफ़ा, ये अपने क्वेश्चन में, असाइनमेंट्स में। सो आपको ये मैं समझा रहा हूँ, आपको कोई इशू कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर इधर तक ही था। हम लोगों ने अपने 7 वीक्स को अल्लाह के करम से कंप्लीट कर दिया है ऑनलाइन लेक्चर्स में, और आपको हम तकरीबन 15 जून तक अपनी क्लासेस ऑनलाइन करेंगे। तो अब 8 वीक को हम शुरू करेंगे, अगले वीक में 1-2 क्लासें और ले लेंगे 8 वीक की भी। और हम लोग फिर, क्योंकि 8 वीक में बहुत ज़्यादा काम है, तो वो हम लोग कुछ अगले वीक में थोड़ा सा स्टार्ट ले लेंगे। फिर ईद के बाद इंशाल्लाह 8 वीक को इन डेप्थ स्टडी करेंगे, और उसके साथ साथ जो है हमने फिर 9 वीक को भी पढ़ना होगा। तो वो थोड़े लेंथी चैप्टर्स हैं काफ़ी, तो उनके लिए हम लोगों ने थोड़ी सी स्टडी यहीं से शुरू करनी होगी। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आएगा। अगले लेक्चर के लिए अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।